अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आपकी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से गुज़र रहे होंगे। तो आ जाएं, हम बहुत ही अरसे के बाद यहाँ पर फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम एक और थ्योरम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, तो जो ये साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, इस पर तो हमने पहले ही बात की है, व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। और इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है उस पर भी हमने ऑलरेडी बात की है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको इसमें जाना है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, उसमें एक फोल्डर है ग्रुप्स। उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डीप में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके रिलेटेड एक important theorem, that is every cyclic group is abelian but not conversely. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको उसके रिलेटेड उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया दूंगा विद इन ए शॉर्ट मिनट ऑफ टाइम। ओके, अब देखिए क्या है साइक्लिक ग्रुप। हम कहते हैं कि एनी ग्रुप अंडर सम ऑपरेशन स्टार, यहां पर मैं लिखूंगा इसको, a G star is cyclic group if there exists an element in G, suppose A in G, such that every element of group is generated by A, and we write this G equal to A. It means G is generated by A. G का मतलब है कि every element of G, and we write it like this an, where n is integer. It can be positive integer, it can be negative integer. Okay, if the operation here is addition, then we write na, मतलब a plus a plus a so on plus a। मतलब अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे एक टाइम्स फर्स्ट टाइम, then we get one element of G. If we operate another time, we get another element of G. Okay, so if the operation is under the multiplication, then we write like this a times so on up to a, that's a power n, where n is integer and a is called generator, and we say that G is cyclic if there exists an element, at least one element। आपको एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, but at least you need to find one element of G such that whole group is generated by that very element। Okay, तो इसके रिलेटेड एग्जाम्पल तो फेमस है जो मैंने वहां पर दी है, Z यानी कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, दैट इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और the generators of Z is 1 minus 1. Okay, and if you have to take the finite example, then you have a group like this, plus minus 1 plus minus iota, fourth roots of unity. Okay, and one thing you have to remember, that if G is finite group like this, the famous theorem is that if you can find an element in G whose order is order of the group, if you can find an element in G whose order is order of the group, then we say that G is cyclic, and you can clearly see that here order of G is 4। order of G का मतलब है कि number of elements in G, that is 4। क्या यहां पर कोई एलिमेंट है आपके पास जिसका ऑर्डर 4 है? अगर आपको ये लेक्चर देखना है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इस पर भी मैंने बात की है, उसी फोल्डर में जाए, ग्रुप्स में जाए, वहां पर आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, a पावर n
is equal to identity where n is the least positive integer. Here you can easily find that जो ये 1 है that's identity here, इसका order हमेशा 1 होता है. -1 की पावर अगर हम 2 करेंगे इसका, तो इसका ऑर्डर आ गया 2 because this is equal to identity. But here जो iota है, iota power 4 is identity here. So we can say that there exists an element I in G having order is equal to order of the group. Hence this G is cyclic and is finite. And you already know that if G is infinite cyclic group, then we say that G is isomorphic to Z. इस पर भी मैंने बात की है, ठीक है. And if it is finite like this, then we say that G is isomorphic to Zn and here is Z4. तो ये है छोटी मोटी एग्जांपल्स. असल में मुझे इस थ्योरम पे आना है कि every cyclic group is abelian but not conversely. ओके, तो ये था थोड़ा सा रिकैप. तो we will move to the theorem. देखिए थ्योरम क्या है. हमें दिया गया है कि G is cyclic group and we have to show that abelian. मतलब अगर हम दो एलिमेंट्स लेंगे x, we have to show that xy is equal to yx. बहुत आसान है. प्रूफ बहुत आसान है. देखिए प्रूफ क्या है. हम we will take let G be a cyclic group. कोई भी cyclic group है, ऑपरेशन कोई भी चलेगा बिकॉज ये हमेशा ट्रू होगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, सपोज हम यहां पर ऐसे लेंगे डॉट. अच्छा, डॉट का मतलब नहीं है कि ये मल्टीप्लीकेशन, इट कैन बी एनी ऑपरेशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, सॉरी, एडिशन मॉड्यूलो एन, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, और अनदर कोई भी ऑपरेशन जो भी आपके पास है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट इज साइक्लिक ग्रुप. तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा. लेट ए बी इट इज जनरेटर, और जो ए होगा वो भी इसी में से आ जाएगा. ए हमें इसी में फाइंड करना है एंड ए इज इट इज जनरेटर. तो अगर ये जनरेटर है इसका मतलब क्या है, दैट इज G is generated by A. It means every element of G is generated by A and we write like this, A power n, where n is integer, कोई भी integer है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये है आपके पास जो आपको गिवन है. हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी थ्योरम हो, हमेशा पहले फोकस कीजिए कि जो भी आपके पास गिवन कंडीशन है उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए. उसी में से आपके लिए रिजल्ट्स निकलेंगे. अब देखिए, हमें शो करना है कि ये एबिलियन है. तो एबिलियन का मतलब क्या है, हमें शो ये करना है कि एक्स वाई, अगर हम इस जी में से कोई भी एलिमेंट्स दो लेंगे, सपोज एक्स एंड वाई, एक्स वाई, वी हैव टू शो दैट दिस इज वाई एक्स for every elements, for all x y in G. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से दो एलिमेंट्स लेंगे. let x y is in G. तो अगर ये इसमें बिलोंग करते हैं एंड G is cyclic, इसका मतलब क्या है, this x will be generated by A. So we write x is equal to A power n, where n is integer. एंड y भी इसी a से जनरेट होगा, सपोज a पावर m, वायर a and m belongs to z. Now we have to show xy is equal to yx. Now take xy is equal, now xy is equal to, x के बदले हम देंगे a पावर n, y के बदले देंगे a पावर m. तो ये क्या हो गया, a पावर n प्लस m.
अब देखिए यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस m के बदले में लिख सकता हूं m प्लस n। क्यों? दीज आर इंटीजर्स and group of integers is abelian under addition, so we can write that m plus n is equal to n plus m. So we can say that m plus n, so implies x y is equal to, तो अब हम इसको अलग अलग करेंगे, a power m, a power n. What is this? What is a power m? That's y. What is this? X. Hence xy is equal to yx for every xy in G. This is true for every two element subgroup. Hence we say that G is abelian. तो आपकी जो थ्योरम है वो हो गई प्रूव. But the converse part, every abelian group is not cyclic. You have to show that every abelian group is not cyclic. हमेशा मैंने आपसे एक बात कही है कि जब भी आपको कोई भी चीज, कोई भी रिजल्ट रॉन्ग दिखाना हो तो यू हैव टू टेक एन एग्जाम्पल. तो आपको एक एग्जाम्पल लेनी है विच इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक. ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक. है कोई एग्जाम्पल? बहुत सारी एग्जाम्पल्स है. हम दो एग्जाम्पल्स यहां पर लेंगे. एक लेंगे हम इनफाइनाइट भी और एक लेंगे हम फाइनाइट भी, ताकि आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए, बट नॉट कन्वर्सली. ओके, तो हम पहले एग्जाम्पल लेंगे सपोज आर अंडर एडिशन एंड यू नो दैट दिस इज एबिलियन. ये एबिलियन है and we have already shown in the cyclic groups when we were studying some examples, some concepts. इसके हवाले से बहुत सारा आपके पास मटेरियल अवेलेबल है. अगर आप थोड़ी सी जहमत देंगे अपने आप को, ग्रुप्स में जाइए, वहां पर आप साइक्लिक ग्रुप्स फाइंड कीजिए. एंड वी हैव शोन दैट दिस इज ओनली एबिलियन, नॉट साइक्लिक. नॉट साइक्लिक. ये हो गई आपके पास एक एग्जाम्पल. एंड दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि सॉरी, सेकंड एग्जाम्पल क्या है आपके पास? अगर आप जानते हैं फेमस एक ग्रुप है आपके पास, क्लीन्स 4 ग्रुप, K4. इस पर भी मैंने बात की है, E A B A B, where A square is equal to E, B square equal to E, AB square equal to E. And you know that इसका ऑर्डर है 4 and this is cyclic. Sorry, this is abelian. But, and you know that this is finite abelian group. But there does not exist, and इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो 4 है. We say that K4 is cyclic अगर आपको कोई भी एलिमेंट यहां पर मिला जिसका ऑर्डर 4 है, then we can say that K4 is cyclic. But here every element, non-identity element, this is non-identity, this is non-identity, this is non-identity, this is identity. Every non-identity element is of order 2. So there does not exist any element having order 4 which is equal to order of the group. Hence K4 is not cyclic. But it is abelian क्योंकि इसका ऑर्डर हमेशा, क्योंकि इसका ऑर्डर है 4 which is less or equal to 5. Those groups having order less or equal to 5 are abelian. And it is the theorem, and this is the theorem we have proved. Okay, I hope कि आपको ये theorem बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. Now we will move to another theorem. उसको भी मैं यहां ही पर प्रूव करूंगा, वो भी आसान है. देखिए थ्योरम क्या है. वो भी बहुत ही आसान थ्योरम है.
देखिए थ्योरम क्या है। इफ ए इन जी, मतलब ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप में से, अगर ये जनरेटर है, अगर ये जनरेटर है जी का, इट मीन जी इज साइक्लिक। सिंपल बात है, कोई भी जनरेटर अगर है आपको जी के पास, अगर कोई भी जनरेटर है तो हम कहते हैं कि जी इज साइक्लिक। जनरेटर ऑफ जी, देन थ्योरम ये है कि ए का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, वो भी जनरेटर होगा। देखिए कितनी ब्यूटीफुल थ्योरम है। बस हमें ध्यान देना होगा मैथमेटिक्स की तरफ, इसके जो अंदर जो चीजें हैं उनको हमें समझने की जरूरत है। देन ए इनवर्स इज जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, प्रूफ। पहले मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहां पर, वही हम लेंगे यहां पर z, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। आप तो जानते हैं दैट इज ग्रुप अंडर एडिशन एंड दैट इज साइक्लिक ग्रुप, एंड इनफाइनाइट, इन फैक्ट दैट इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। एंड यू नो दैट वन जो z में है ये इसका जनरेटर है, a is generator of g, and you know that -1 is the inverse of 1, and -1 is also the generator of this z. -1 is also generator. Okay, so it is infinite group. Now if you take finite group, suppose वही जो अभी हमने लिया है +-1 + iota, and you know that it is cyclic group and iota is the generator, क्योंकि iota power 4 which is equal to order of the group that's equal to 1. जो iota है इसका जो इनवर्स है वो है माइनस iota, and this is also generator, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 4 ही है। ये है थ्योरम, इसको कहते हैं थ्योरम को अप्लाई करना। बट इफ यू हैव टू प्रूव द थ्योरम, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका, मतलब बहुत ही आसान है ना, वन इस वारिया ज्यादा आसान। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसान प्रूफ है, इसको भी हम यहां पर टैकल करेंगे। देखिए प्रूफ, सिंस A is the generator of G, okay, so we are given that G is equal to A, इसका मतलब ये है कि दिस इज जनरेटेड बाय A where n is integer। इस बात को जहन में रखिए, n is any positive or negative integer। we have to show that A inverse is also generator। what we have to show that, we have to show like this, G is generated by A inverse, सिंपल बात। ओके, तो अब देखिए ना, बहुत ही आसान है। तो अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट लूंगा, we have to show that every element of G is generated by A inverse, उसी को कहते हैं G is generated by A inverse। तो हम यहां पर कोई भी एलिमेंट लेंगे, let suppose X is in G, इसका क्या मतलब है, X is generated by n where n is integer। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A-1 -n, क्या इसको कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं, ये भी माइनस इंटू माइनस इज प्लस, वो आ गया खुद n ही। अब देखिए बहुत ही, अगर आप माइंड अप्लाई करेंगे थ्योरम हो गई प्रूफ। हमें चाहिए n इंटीजर, तो अगर n इंटीजर है -n भी इंटीजर है, पर -n बिलोंग्स टू z, इसी को नाम आप रख सकते हैं सपोज m। इसमें क्या है, इसको नाम रखिए m, where m is -n। तो हो गई ना थ्योरम 2, क्योंकि x आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ g,
तो अगर एक्स पे ये ट्रू है तो हर किसी एलिमेंट पर ये ट्रू हो गया. Hence we say that G is generated by A inverse. So we can write therefore D is generated by A inverse. Hence A inverse is generator. A inverse is generator of G. ठीक है. This is all about the today's lecture. Okay, we have gone through this theorem that if A is the generator of G, then A inverse is also generator of the group G. Okay.